Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. This is a 3-card based reading. It's a general and timeless reading. So, whenever you will reach this reading, it will resonate with you. It will have a message for you then and there only. And I believe that just be listener ke liye, this reading has a message. That listener will definitely reach this recording. So I'm shuffling the cards, and already known to all of you that there is no pre-decided topic for my reading, और जो भी message आता है in the reading, that becomes a topic for my reading. I'm shuffling the cards and I'm praying to the God to give me cards. And whatever cards will come out, I will read them for you. So I believe that it's a message, it's a guidance from Divine. So let me mix it well. So this is a general and timeless reading. So I pray that सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेज हो, और if you have any means if you want reading for any particular question that you have in your mind, then you can contact me in the you can contact me on the email ID that I have given in the description box. That would be a personal reading, and personal readings are paid readings. So I have mixed the cards well. दो कार्ड भी नीचे गिर गए. Let me just pick them up. So it's a beautiful morning time, and I know many of the listeners who would be catching up this recording later, they would be sleeping right now. अभी सोने का मतलब है 3 to 6 AM के बीच में सोने का मतलब है खोना. Yes, these 3 hours are treasure. ऐसा treasure जिसमें anything, any good blessing one can pick, right? So when I do reading in these hours, sitting in my balcony, I look up to the sky and I can see the stars and the moon. They're so beautiful, calm, peace. It's a beautiful feeling. It's a beautiful time. That is why it is a divine time. It is a divine time, so it is so beautiful. जब पहले मैं उठती थी ना, मतलब उठ के बैठती थी बालकनी में, तो I used to look at the market down there and the shopkeepers. This is their daily routine to open the shop at this time, at 4 AM, 5 AM. अब जो जैसे डेयरी वगैरह होती हैं, they open early morning. टेम्पल अर्ली मॉर्निंग खुलता है बिकॉज ऑफ द मॉर्निंग आरती. एंड टेम्पल है तो वैसे भी अर्ली मॉर्निंग खुलेगा. तो आई यूज़ टू कीप लुकिंग डाउन टू ऑल दीज थिंग्स. सडनली I looked up. I'm talking about a day. So suddenly I looked up and I saw moon, stars, the sky, and the quietude. इतना अच्छा environment. Then ये thought आया. Every day I used to see these things. Then this thought came to my mind that we keep looking at
at the hustle and bustle of the city. थोड़ा टाइम निकाल के अगर हम स्काई को देखें तो वो भी बहुत हीलिंग देता है, बहुत पीस देता है। चलिए, बातें हो गई बहुत। एक्चुअली while I mix the card, so I keep talking to you and I keep praying to God also, both the things together. I keep praying to God to get me 3 cards for now, and I keep talking to you so that you should know that I am there. Okay, so I'll take out 3 cards now. The first card for now, the second card for now, and the third card for now. And now I will read it for you. I just pray कि पॉजिटिव मैसेज दे, पॉजिटिव गाइडेंस हो। गाइडेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, मैसेज पॉजिटिव हो। ओके, सो आई एम टेकिंग आउट द कार्ड्स। वाओ, इतना अच्छा कार्ड अभी फर्स्ट कार्ड ही मैंने उठा लिया है कि हो गया रीडिंग कंप्लीट। बिकॉज़ ये कार्ड अगर रीडिंग में आ गया है, ओके, वाओ, सुपर्ब रीडिंग, सुपर्ब। ओके, मैं मजिशियन के कार्ड से स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। अभी जो आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, जो भी आपका प्रेजेंट चल रहा है, आप द मजिशियन की एनर्जी में हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने रीसेंट पास्ट में बहुत मेहनत की है, बहुत उन्होंने उथल पुथल भी, मेंटल टर्बुलेंस और बहुत मतलब अशांति वाला पीरियड उन्होंने बिताया है। दे हैव वर्कड हार्ड to balance their emotions. They have worked hard to heal themselves. I'm talking about the recent past. और ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आपको बहुत इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इमोशनल लेवल पे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको हुई हैं। और मुझे लगता है कि वो जो इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट आपको हुई है ना, उसी की वजह से आप इस द मजिशियन के एनर्जी में आ चुके हो। मजिशियन ये वो पर्सन है जो सब कुछ कर सकता है, जिसके पास सब कुछ है, जो हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता है। इस मजिशियन के कार्ड में इसमें कप की भी एनर्जी होती है, इसमें पेंटिकल्स की भी एनर्जी होती है, इसमें स्वॉर्ड की भी एनर्जी होती है, वंड की भी एनर्जी होती है। इसके सर पे इनफाइनाइट का साइन है। बहुत ही येलो एंड ब्राइट कार्ड होता है मजिशियन का। तो जिस तरह का ये कार्ड है, उसी तरह का मतलब इसकी ऐसे इस पर्सन की एनर्जी होती है, एकदम ग्लो करता हुआ। लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने की अभी एबिलिटी आपके पास है। आपको उसे, अगर आपने उसे रियलाइज़ कर लिया तो आप बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सारे जो आपके प्योर विशेज़ होंगे वो ज़रूर कंप्लीट होंगे। अब देखिए क्यों ऐसा है, आप मजिशियन की एनर्जी में क्यों है, ये एक ब्लेसिंग है गॉड का। मजिशियन की एनर्जी में आना, जैसे कि मैंने आपको बताया, कप्स भी आपके फुल रहेंगे, क्योंकि इस कार्ड में सब कुछ है। हमारे टैरो में देयर आर 4 थिंग्स, पेंटिकल्स, कप, स्वॉर्ड एंड वंड्स। ये चारों चीज़ें हैं एंड दे रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर। तो ये सारे अब ये जो मजिशियन है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स इसके एकदम इसके कंट्रोल में हैं। इसका इमोशन जो कप है, जो इमोशंस को दिखाता है, वो भी फुलफिल्ड है। और पेंटिकल्स है, यानी कि फिनेंशियली भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, स्वॉर्ड की एनर्जी है तो बहुत एंथुजियाज़म, बहुत करेज भी है। वंड की एनर्जी भी है विच रिप्रेजेंट्स फायर एलिमेंट। तो जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी प्लान्स हैं, उनको
उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए एकदम वो पूरा जोश इस पर्सन में है और वो अचीव कर लेगा। तो मजिशियन इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। और इनफाइनाइट का जो ये इनफाइनाइट का साइन आप सबको पता होगा, नंबर 8 जैसा होता है, तो ये इसके सर पे है, मीन्स कि इंटेलेक्चुअली का ये एकदम फुल्ली एनलाइटेंड पर्सन है। अब ये इस स्टेट में जो ये पर्सन है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि रीसेंट पास्ट में इसने ये इसके जो कप्स हैं वो हमेशा खाली रहे हैं, इमोशंस जो हैं वो खाली रहे हैं। बहुत इसने जैसा मैंने बोला इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स इसने पास्ट में देखा है, बहुत इमोशनल टर्बुलेंस इसने पास्ट में देखा है। और ये जो 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है उसमें एक पर्सन बहुत निराश होके बैठा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पिक्चर, थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ। और वो अपने सामने रखे हुए 3 कप्स को देख रहा है जो कि एम्प्टी हैं। ओके, वो अब देख रहा है और बहुत डिसअपॉइंटेड है। बट देन देयर इज़ अ डिवाइन हैंड कमिंग आउट ऑफ द क्लाउड्स विद द कप एंड ऑफरिंग टू द मैन। और मतलब इसका मीन्स द रीडिंग जो इससे निकल के आती है वो ये कि इमोशनल इम्बैलेंस को सफ़र करने के बाद, इमोशनल क्राइसिस को सफ़र करने के बाद आपने स्पिरिचुअली इतना ग्रो किया है दैट इस क्राइसिस ने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम अ वीक पर्सन टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। स्ट्रॉन्ग कैसा? आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, आपको वो चीज़ मिल गई, वो बिकॉज यू नो विच इज़ द एक्चुअल थिंग, विच इज़ जो सही में स्ट्रेंथ है। अगर आपका जो स्पिरिट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, देखो बॉडी स्ट्रॉन्ग होने से ना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपका स्पिरिट स्ट्रॉन्ग है तो ही आप स्ट्रॉन्ग हैं, सिर्फ बॉडी बना लेने से नहीं होता है। तो ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये जो मैं जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, आपकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, आपके विजडम की बात कर रही हूँ, जो आपने गेन किया है, ये आपको फिर आपका हाथ जो है डिवाइन ने पकड़ा है बिकॉज़, और वो आपके इमोशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं। आप वो बोल रहे हैं आपको, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि जब आप एकदम हताश निराश हो गए होंगे अपने इमोशनल क्राइसिस की वजह से, जिस भी वजह से आपका इमोशनल क्राइसिस रहा हो, बट तो इमोशनल क्राइसिस तो था, तो उसमें उस सिचुएशन में डिवाइन ने आपको ये बोला कि बेटा तू क्या देख रहा है, तू किन कप्स की तरफ देख रहा है, ये कप ले। ओके, बिकॉज एज द पिक्चर सेज, एज द पिक्चर शोज दैट द डिवाइन इज ऑफरिंग अ कप, सो टेक दिस कप। और ये जो आदमी है ये अभी दुख में एकदम गमगीन है और वो अपने तीनों कप्स को ही देख रहा है। सो डिवाइन इज़ ऑफरिंग इट, होता है ना जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, इट्स तो इस टाइप की सिचुएशन है। अब आपको जब आपका हाथ जब डिवाइन ने पकड़ लिया है तो आप मजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। और मजिशियन की एनर्जी जो है वो बस इतना पॉजिटिव कार्ड है ये कि रीडिंग तो यही ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन आई विल टेक अप द थर्ड कार्ड ऑल्सो, एंड ये लवर्स का कार्ड है। मुझको लगता है कि ये इमोशनल क्राइसिस जो है ये शायद कोई लव रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा, जो आपका जो कोई ब्रेकअप हुआ होगा या कोई, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है मजिशियन के कार्ड के बाद। तो यही है कि गॉड ने आपको ऐसा, गॉड हैज़ अश्योर्ड, गॉड इज़ प्रॉमिसिंग यू कि एक लव तुमने खोया है, बट जो लव अब गॉड तुम्हें देने वाले हैं वो अनकम्पेरेबल है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। लवर्स का कार्ड बताता है कि ये मुझे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा आपका पार्टनर एंटर करने वाला है, कोई भी ऐसा पर्सन एंटर करने वाला है जो आपको एकदम आपको इमोशनली सेटिस्फाई कर दे, आपको इमोशनली एकदम हैप्पी कर दे, आपकी लाइफ में हैप्पी सिचुएशंस ले आए, आपके लिए काफ़ी सुखद परिस्थितियाँ बना दे। तो इस तरह का पर्सन मैं देख रही हूँ। लवर्स का कार्ड है और लवर्स के कार्ड में इसमें भी जो है येलो पूरा ब्राइट कार्ड है। ये एक डिवाइन बीइंग है अप अबव देयर,
एक लड़की है, एक लड़का है इस कार्ड के अंदर. आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग द पिक्चर अगेन. और डिवाइन है एंड देयर इज़ अ सन ऑन द टॉप ऑफ द कार्ड. तो द काइंड ऑफ रीडिंग जो निकल के आई है बहुत ही सुखद रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है. तो ये डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति से, जो 4 ऑफ कप का कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति से आपको इस जो डिवाइन है, गॉड है, वो मजिशियन के लेवल पे ले आए, मजिशियन की स्थिति में ले आए. मतलब आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, आपको स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, आपको वो विजडम दे दी है कि अब आप मजिशियन की एनर्जी में हैं और कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं. और आप कुछ भी, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी आपकी प्योर विशेज़ रही होंगी और जो भी ठोकरें आपने खाई होंगी इमोशनली, पहले इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स को देखा होगा, आप वो सिचुएशन को कम्प्लीटली चेंज करने वाले हैं. और पूरा वो उसको हैप्पी मोमेंट, ओनली हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में आप डिराइव करके ला सकते हैं. मतलब ये आपकी करंट की एनर्जी है. आप इस एनर्जी को आप वेस्ट मत कीजिए. अभी मैंने आपको बता दिया कि आप करंट में जिस एनर्जी में है वो मजिशियन की एनर्जी है. मतलब आप कुछ भी प्योर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं. मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि प्योर चीज़, प्योर विश, क्योंकि इम्प्योर विश गॉड कभी पूरी नहीं करते हैं. जो उचित होता है गॉड वही देते हैं, जो उचित नहीं है वो गॉड नहीं देते हैं. तो मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि थिंक प्योर, एक्ट प्योर, से प्योर, जिससे दूसरों को कोई हर्ट ना हो. एंड ये सबसे बड़ा सिन है किसी को हर्ट करना. और किसी को हर्ट करने से मतलब है किसी बोलते हैं, निरपराध को हर्ट करना. ये सबसे बड़ा सिन है. किसी आत्मा को, किसी अच्छी प्योर आत्मा को हर्ट करना, ये सबसे बड़ा सिन है. वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी प्योर आत्मा को हर्ट करते हो ना, तो वो सीधा चैलेंज ना परमात्मा ले लेते हैं. वो आत्मा भले आपको माफ़ कर दे जिसको आपने हर्ट किया है, जिस प्योर बीइंग को आपने हर्ट किया है, प्योर ह्यूमन बीइंग को, वो भले आपको माफ़ कर दे, क्योंकि दैट प्योर ह्यूमन बीइंग ऑलवेज लुक्स अप टू गॉड फॉर एवरीथिंग. तो वो भगवान पे ही छोड़ देता है. लेकिन जब आप किसी प्योर आत्मा को हर्ट करते हो तो वो चैलेंज परमात्मा ले लेता है. और फिर परमात्मा जब अपनी तरफ से लेसन्स सिखाने लगते हैं, या आई वुड यूज़ द वर्ड, जब परमात्मा रिवेंज लेने लगते हैं ना ऑन बिहाफ ऑफ दैट प्योर आत्मा, बहुत बहुत महंगा पड़ता है. जो डूअर है उसको बहुत महंगा पड़ता है. तो प्योर आत्मा को अननेसेसरीली, विदाउट एनी रीज़न, कोई किसी को भी बिना किसी गलती के किसी को हर्ट करना, ये चैलेंज सीधा परमात्मा को करना है. और परमात्मा तो सब कुछ ही कर सकता है. अगर वो डिस्ट्रक्शन पे आ जाए तो सब कुछ कर सकता है उस पर्सन के साथ, राइट, जो डूअर है. और कंस्ट्रक्शन पे आ जाए, अगर किसी की लाइफ को कंस्ट्रक्ट करने पे आ जाए, तो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है. तो God is that power, that God is almighty. सो मजिशियन की एनर्जी में आप इस वक्त हैं. इसलिए मैं बार बार बोलूँगी कि प्योर विशेज़, प्योर डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप अभी, और वो हो जाएगा मैनिफेस्ट, बिकॉज यू आर इन दैट पावर, यू आर इन दैट मैजिशियन, इन दैट एनर्जी. और ये पावर आपको परमात्मा ने क्यों दी है पता है? आपके रीसेंट पास्ट का, आपकी प्योरिटी को देखकर ही आपको ये पावर मिली है. इसका मिसयूज़ तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो उस लायक नहीं होगा ना, जो मजिशियन के पावर में आए, गॉड उसको मजिशियन की पावर देंगे ही नहीं. गॉड को ये लगा कि आप मजिशियन की पावर में आ सकते हो, यू आर दैट सोल दैट कैन बी ट्रस्टेड बाय द सुपर सोल, तभी आपको ये मजिशियन की पावर मिली है. और लवर्स का कार्ड आया है, तो ये आपकी लाइफ में ना फुलफिलमेंट को दिखा रहा है. अगर आप किसी भी वजह से इमोशनल क्राइसिस से आप गुजरे हैं, ठीक है, वो लव रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या कोई भी और प्रॉब्लम हो सकता है, तो लवर्स का कार्ड बता रहा है कि वो फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है.
ठीक है, अभी आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं, आप इससे मैनिफेस्ट करेंगे और जो सिचुएशन आपने, जो भी कुछ आपने लूज़ किया है पास्ट में, आपको वो ही नहीं, उससे बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करेंगी। तो ये आपकी नियर फ्यूचर की एनर्जी होने वाली है। करंट की एनर्जी मैजिशियन की है आपकी, तो ये बहुत अच्छी बात है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये जो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला है, इसको रहने देते हैं। एंड नोट पे मैं यही बोलूँगी कि चलिए उसको भी ले लेते हैं, क्योंकि वो भी तो एक स्टेप रहा है ना, एक उस स्टेप को क्रॉस करके ही आप मैजिशियन, और मैजिशियन के बाद आपके पास ये दो लवर्स का कार्ड आया है, तो उसको भी ले लेते हैं। तो स्पिरिचुअली अपने आपको स्ट्रॉन्ग किया है गॉड ने, ओके। आपको वो विजडम दी है कि आप एकदम मतलब चीज़ों को इंटेलेक्चुअली देख सकें। मैजिशियन का उन्होंने आपको मैजिशियन की एनर्जी दी है कि भाई जो भी दुख तूने झेले हैं, उन दुख दैट एक्चुअली गॉड ट्रांसफॉर्म्ड यू थ्रू दोज पेन्स, ओके। एंड ट्रांसफॉर्म करके उन्होंने आपको वट एवर यू डिज़ायर वो आपको फुलफ़िल करेंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है आपके साथ, ठीक है। सो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।